Hello students, today I am going to revise the next 10 name reactions of organic chemistry. Now let us start name reaction. I have already discussed the 10 name reactions of chapter haloalkanes and haloarenes. Now the next chapter is alcohol, phenol and ether. From this chapter I have already discussed two name reactions, that is Kolbe reactions and second is Riemann-Tiemann reaction. Okay. Now the next name reaction is reaction number 3, but this is oxymercuration reaction. Oxymercuration and demercuration. Of alkene. ओके देखो बेटा, इस नेम रिएक्शन में क्या है? एल्कीन इज रिएक्ट विद अ मर्क्यूरिक एसीटेट, ओके, विच इज अ मिक्सचर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. ओके देखो, सपोज दिस इज एल्कीन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, इट रिएक्ट विद अ, दिस इज अ एल्कीन बेटा, दिस इज ब्यूटीन. ओके, इसका नाम क्या है? ब्यूटीन. इट रिएक्ट विद अ, ये किसके साथ रिएक्ट करती है बेटा? मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc. एसीटेट को मैंने AC ले लिया और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस में होती है ये. ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है बेटा? वाटर ऐड होता है. ओके, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है एंड इट विल गिव द हाइड्रोक्सी मर्क्यूरल कंपाउंड लाइक दिस. दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन बेटा, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? CH3 CH2 CH single bond CH2. One bond is here, one bond is here. Here OH is here. ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, यहाँ से OH आ जाएगा एंड व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? HgOAc, mercuric acetate is formed. Okay. Now after that, this hydroxymercural compound that will form the, ये क्या फॉर्म करेगा? that undergo रिडक्शन. रिडक्शन किसके साथ होगी बेटा? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ. ओके ठीक है, तो ये क्या करेगा? HgOAc इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम. ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीमर्क्यूरेशन एंड जब इसमें यहाँ पे OH आ जाएगा तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन. यहाँ तक ये रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, बट जैसे ही हम इसका रिडक्शन करते हैं देन इट विल गिव द demercuration, means this HgOAc product that is replaced by hydrogen. Then what will be formed here? This is CH3, this is CH2, this is CH2 and here OH group is present and this group is replaced by hydrogen. So here H is present. Okay, now this is, ये क्या है बेटा? This is a secondary butyl alcohol. This is secondary butyl alcohol. Okay, now this is the name reaction of oxymercuration, demercuration of alkene. अब बेटा मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ. देखो, जहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन आया है मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल मान लो आपका, एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ. सपोज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अगर इसकी रिएक्शन हमें इसके साथ करनी पड़ जाए मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF एंड वाटर. ओके,
then what will be form here? This bond break down beta. In case of oxymercuration means oxygen पहले आएगा, after that hydrogen. ओके मीन्स हमें यहाँ पे वाटर को ब्रेक करना है बेटा, तो एक साइड OH और एक साइड H. ओके एक बॉन्ड ब्रेक करने पे ये होगा, तो दिस विल फॉर्म CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज H. ओके दिस विल बी फॉर्म हियर. ओके this is the simply trick, means double bond is break down and here OH and H is formed. Now the next reaction is Fries rearrangement. Okay, Fries rearrangement. In these reactions phenyl acetate, suppose this is phenyl acetate beta, OCOCH3, this is acetate group. Okay, this is phenyl group. Phenyl acetate when heated in presence of AlCl3. Okay, AlCl3 that undergo rearrangement and to give the ortho and para hydroxy ketone, it will form the ortho and para hydroxy ketone. This is ortho and this bond is breakdown beta, here H is formed and what will be left here? COCH3. Okay, this is ortho hydroxy acetophenone. Okay, acetophenone. And second product what will be formed here? This will be formed here. This is OH and this is COCH3, means this is para position. इसका नाम क्या होगा? Para hydroxy acetophenone. Okay, it means when the phenyl acetate react with anhydrous AlCl3, on heating it will form the ortho hydroxy acetophenone and para hydroxy acetophenone. Okay, this reaction is called as Fries rearrangement. Okay, in this reaction involves the migration of this acyl group from phenolic oxygen to the ortho and para position, okay, of the aromatic ring. Now next reaction is Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis या इसको डायरेक्ट हम विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं. देखो बेटा, इन दिस रिएक्शन फर्स्ट क्या है कि इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं. सपोज दिस इज RX, alkyl halide. It react with a sodium alkoxide. This is sodium positive or this is alkoxide. Okay, then what will be form here? यहाँ पे NaX आपका यहाँ से निकल जाएगा and then what will be form here? This will be form ROR dash. Okay, so this is ether. सो इट्स नेम इज़ विलियमसन सिंथेसिस. इसमें हम क्या लेते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड लेते हैं. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. देन इट विल फॉर्म द ईथर. ओके, now this method is useful, this synthesis is useful for the preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether like this. Suppose this is CH3 CH2I, it react with Na positive OCH2 CH3, means sodium alkoxide. इसका नाम क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड. देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर? यहाँ से बेटा NaI आपका रिलीज हो जाएगा एंड देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर? दिस विल बी फॉर्म बेटा CH3 CH2 OCH2 CH3. तो ये क्या है बेटा? सिमेट्रिकल ईथर है. कैसा है? सिमेट्रिकल ईथर. क्या नाम है इसका? डाई इथाइल ईथर. डाई
इथाइल ईथर, तो ये सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करती है। ओके बेटा, NaI इज रिलीज हियर। ओके, ये बन जाएगा आपका। इन दिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सपोज बेटा दिस CH3Br रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, दिस रिएक्ट विद सोडियम टर्सरी ब्यूटेक्साइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड है बेटा, इट रिएक्ट विद अ सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये टर्सरी बना दिया बेटा मैंने, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर, देखो बेटा NaBr इज रिलीज हियर। ओके, यहाँ से आपने NaBr आपने निकाल दिया, प्लस व्हाट विल बी फॉर्म हियर, दिस विल बी फॉर्म CH3O, दिस इज CH3, this is CH3 and this is also CH3. This will form the unsymmetrical ether, क्योंकि देखो बेटा ऑक्सीजन के इधर मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के इधर टर्शरी ग्रुप है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, देन so this is not a symmetrical, this is unsymmetrical ether. Okay, then its name is methyl tertiary butyl ether. Okay, this is the name. Okay, now the next reaction is CH3I, this is methyl iodide, it react with a sodium phenoxide, then what will be formed, NaI is released here, NaI, and what will be formed here, this will be formed here OCH3. okay, this is एनीसोल, इसका नाम क्या है बेटा, एनीसोल, और ये आपका है सोडियम फिनॉक्साइड. ओके, मीन्स मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शंस हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ करते हैं. देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, NaI इज रिलीज हेयर एंड एनीसोल इज फॉर्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन from the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay, now the reaction number is 4. देखो बेटा इसमें क्या है, रोजन-मार्न्स रिडक्शन, रोजन-मार्न्स रिडक्शन. In this reaction acid chloride are converted into corresponding aldehydes by the catalytic reduction. ओके, तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, प्लैडमियम डिपोजिटेड ओवर द बेरियम सल्फेट. ओके, लाइक दिस, सपोज दिस इज द एसाइल क्लोराइड RCOCl, दिस इज एसाइल क्लोराइड. इट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ना, इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं किसकी प्रेजेंस में बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4. ओके, एंड व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, HCl इज रिलीज, एक हाइड्रोजन एंड Cl. ओके, HCl is released here, one hydrogen is left here, this hydrogen is left, then it react with R, C double bond OH. ओके, दिस इज एल्डिहाइड, इसको क्या नाम देते हैं हम बेटा, एल्डिहाइड. प्लस व्हाट विल बी रिलीज हियर, HCl इज रिलीज. ओके, नाउ सपोज मान लो हमने यहाँ पे बेटा बेंजाइल ग्रुप ले लिया, आर ग्रुप इज द बेंजाइल ग्रुप, तो इस ये है बेटा C double bond OCl. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज बेंजोइल chloride, benzoyl chloride. Okay, it react with hydrogen in presence of PdBSO4. Okay, then what will be formed, same, one hydrogen and one chlorine is released here,
then what will be formed here? This will be formed COH. Okay, what is the name of this compound? This is benzaldehyde. This is benzaldehyde plus HCl is released here. Okay beta. Now the next reaction, that is reaction number 5. Now reaction number 5th is स्टीफन रिएक्शन. देखो बेटा, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो नाइट्राइल होता है वो रिड्यूस होता है इमीन्स में. किसकी प्रेजेंस में होती है? SnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. ठीक है, और यहाँ पे हम HCl भी ऐड करते हैं. ओके, तो देखो सपोज SnCl2 ये रिएक्ट करता है HCl के साथ, then what will be formed? SnCl4 plus hydrogen is released here. Okay, then this Cl4, so here 2Cl is present, it is multiplied by 2. Okay, then यहाँ से हमें क्या मिला बेटा? 2 हाइड्रोजन मिल गए. अब इसकी रिएक्शन हमें करनी नाइट्राइल के साथ. देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपका नाइट्राइल ग्रुप. ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें इसके साथ करनी है 2 हाइड्रोजन और HCl के साथ. ओके, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? देखो क्या बनता है बेटा, दिस इज CH3, दिस इज C. अब यहाँ देखो बेटा, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर, तो दिस इज CH डबल बॉन्ड NH. ओके, एंड HCl इज लेफ्ट, सो डॉट HCl. ओके, ये मल्टी प्रोडक्ट होता है इसका. ठीक है, इसका नाम क्या है? दिस इज एसिड एल्डोक्साइम हाइड्रोक्लोराइड. एसिड एल्डोक्साइम हाइड्रोक्लोराइड. ओके, हाइड्रोक्लोराइड. देन आफ्टर दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस, अब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देन इट विल गिव द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड. तो ये हमें एल्डिहाइड देता है. तो देखो बेटा कैसे मिलेगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन हेयर, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन. ओके, देन व्हाट विल बी फॉर्म? CH3 CHO. ठीक है, एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म एंड व्हाट विल बी लेफ्ट? दिस इज NH2 NH4 हो गया, NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड इज left behind. Okay, so Stephen reaction is used to convert the nitrile. यहाँ पे हम कोई भी लेंगे, मिथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल, कोई भी नाइट्राइल ग्रुप होना जरूरी है बेटा. नाइट्राइल से किस में कन्वर्ट करता है? दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइल टू, पहले इमीन में कन्वर्ट होगा, इमीन से बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, इट्स नेम इज एसिड एल्डिहाइड. ओके, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. डन. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन नंबर 6, इटार्ड रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. इटार्ड रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द टॉलिन. हम टॉलिन लेते हैं, ये टॉलिन है. इसकी रिएक्शन हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, CrO2Cl2. दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2. ओके, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? क्या बनता है? दिस इज CH, ये हमारा CH है. ओके, ये आपका जो है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो बेटा देखो ये क्या बनता है? पहले आता है O, आफ्टर दैट Cr, ये O Cr, फिर यहाँ पे OH एंड आफ्टर दैट Cl2. ओके, ये आपका 2 टाइम्स O Cr OH Cl2. ओके, दिस विल बी फॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस. जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं देन व्हाट विल बी फॉर्म? इट विल गिव द
बेंजल्डिहाइड। ये बॉन्ड सारा ब्रेक हो जाएगा बेटा, दिस विल बी फॉर्म, ओके। ओनली यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CHO, दिस विल फॉर्म CHO, बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, ओके। सबसे पहले देखो टॉलिन लिया, इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ की, ओके, देन इट विल फॉर्म अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इट विल गिव द बेंजल्डिहाइड, ओके। सो इटार्ड रिएक्शन से हम देखो टॉलिन से अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो वी फॉलो द इटार्ड रिएक्शन, ओके। नाउ द रिएक्शन नंबर 7, गेटरमैन-कॉच रिएक्शन, गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। देखो बेटा, when the benzene and its derivatives is react with a carbon monoxide, मान लो सपोज ये बेंजीन है, ओके, इसकी रिएक्शन हम COHCl के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कॉपर क्लोराइड, ओके। जब इसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड कॉपर क्लोराइड, देन इट विल गिव व्हाट विल बी फॉर्म हेयर बेटा, दिस विल बी फॉर्म बेंजल्डिहाइड, ओके, बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो देखो इसको किस नाम से आपको याद करना है, देखिए कॉच है, इसमें आप CO यूज़ कर सकते हो, H से आप HCl यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ओके। तो ये रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है जो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन नंबर 8, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये आपकी दो टाइप से बेटे, एक तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन होता है, ओके। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके। एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, okay, means benzene and other aromatic compounds that react with the alkyl halide. Suppose this is benzene and it react with alkyl halide CH3Cl, okay, in presence of anhydrous AlCl3, okay, then इट विल फॉर्म द एल्काइल बेंजीन। ये क्या बनाता है, एल्काइल बेंजीन। जी, बेंजीन का हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये Cl है, तो ये बेटा Cl निकल गया, ये HCl, ठीक है, HCl इज रिलीज है, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, जहाँ पे आपने हाइड्रोजन निकाला है वहाँ CH3 ग्रुप इज अटैच हेयर एंड HCl इज रिलीज, ओके। सो दिस कंपाउंड इज टॉलिन, ओके। Now, second reaction is acylation. Friedel-Crafts acylation. In this reaction, benzene and other aromatic compounds that react with the acyl chloride, ठीक है, acyl chloride के साथ ही react करते हैं. Suppose this is benzene, it react with a acyl chloride, okay. इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, देन यहाँ से बेटा हाइड्रोजन और यहाँ से आपका Cl, दिस विल बी रिलीज, HCl इज रिलीज हेयर, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, इट विल फॉर्म CO। अब आपको यहाँ से करना है COCH3 इज रिलीज, ओके। इट्स नेम इज एसीटोफेनॉन, इसका नाम क्या है, एसीटोफेनॉन, ओके, डन। नाउ आई टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, यू टेल बेटा, दिस इज बेंजीन, इट रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3. देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर, देखो बेटा यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका Cl निकल गया. देन व्हाट विल बी फॉर्म, 2 बेंजीन रिंग आपको अटैच करनी है और साथ में आपको CO ग्रुप भी लगाना है. ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ये आपकी रिंग बन गई. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा बेटा डाईफिनाइल कीटोन. And here HCl is released. Okay, so this is our Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction is of 2 type beta. First is alkylation and second is acylation. Okay, now next reaction is reaction number 9, Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. Okay, in this reaction what will be formed, carbonyl group of aldehyde or ketones that is reduced to CH2 group. Okay, जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं बेटा, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं. सपोज दिस इज कीटो ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, या तो एल्डिहाइड का हो सकता है या कीटोन का हो सकता है. जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिलते हैं. ओके, अब ये क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन, व्हाट विल बी फॉर्म है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन मिला. अब सेकेंड बॉन्ड ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन and hydrogen. How many hydrogen? Total 4 hydrogen is present here. So what will be formed? This will give the CH2. Means this is hydrocarbon. CH2 group is present here. Okay, and water is released. ये बेटा water बन गया. This water is released. Okay, तो हम simple कर सकते हैं. Suppose I take the example of acetophenone. Suppose this is acetophenone. ओके, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन से हमेशा बेटा हमें हाइड्रोजन मिलती है. ठीक है, देखो जिंक Hg, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl. ओके, व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, देखो बेटा दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन. Second bond break down, this hydrogen and 1 hydrogen here. Here water is released and what will be formed here? This will be formed ethyl benzene, CH2 CH3. Ethyl benzene is formed here and water is released. Okay, water is released. Now the last reaction is 10th reaction, that is Wolff-Kiesener reduction. Wolff-Kiesener reduction. देखो बेटा ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है. ये भी क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के हैं उनको रिड्यूस करता है, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में. और वॉल्फ-कीज़नर में भी क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस होता है हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में. बट बोथ फॉलो द डिफरेंट रिएजेंट. ये क्लेमेंसन जो होता है जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में होता है, बट ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है. देखो सपोज दिस इज कीटो ग्रुप. ओके, इसकी रिएक्शन मुझे करनी है हाइड्रोजन के साथ. क्या होता है फॉर्मूला, NH2 NH2, तो मैंने ऐसे लिख दिया NH2 NH2. ओके, अब बेटा यहाँ से क्या होगा, सिंपल पहले ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, वाटर निकल गया,
वाटर यहाँ से रिलीज हो गया. देन व्हाट विल बी फॉर्म? इट विल फॉर्म द C डबल बॉन्ड NNH2. दिस विल फॉर्म द हाइड्रोजोन. इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजोन. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इसकी रिएक्शन अब KOH के साथ करते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसको हीट कर देते हैं. देन व्हाट विल बी फॉर्म? यहाँ से बेटा 2 नाइट्रोजन जो है आपकी वो रिलीज हो जाएंगी. नाइट्रोजन गैसेज रिलीज. देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? दिस विल बी फॉर्म CH2 प्लस N2. तो ये आपका क्या है बेटा? ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है. सो दिस रिएक्शन मीन्स दिस कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दैट इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, पहले हाइड्रोजन करेंगे, आफ्टर दैट KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, इसके साथ आप हीट करोगे, देन it will converted into the hydrocarbons. So both the reactions, Clemmensen reductions and Wolff-Kishner, both shows the reduction of keto group to the hydrocarbon. Okay students, please revise all these next 10 reactions of the organic chemistry. Okay, these reactions are very important for your exam. Thank you.